on our YouTube channel on the sequence of poems reading. Today we are going to study or discuss about the most famous love poems of English literature. Sonnet number 166. 116. Let marriage, let love or the marriage with true minds of William Shakespeare. Before we begin about this poem, I question one thing. Can true love exist in the world? In the real world, can true love exist in the real world with difficulties, distance, time changing and circumstances? Can true love lives with these things? In this poem, we explores about the idea of Shakespeare's things and most of thought of Shakespeare's circumstances. The poem represents about love, temporary emotions as powerful permanent ideas. Powerful permanent idea of the poem. Powerful and the permanent idea of the poem. It remains constant through the life. Shakespeare says the love always constant. It never change with circumstances or the time or the long distance relationships. That's why Shakespeare says through the beautiful images such as lighthouse, guiding stars, passage of time, that poet explains the quality of love. The guiding stars and lighthouse both are lives in the same time at the same place. They never change and in any tempest. So that's why Shakespeare says that true love also remain at a place. It's never change with circumstances and any bad condition. In this lesson, we will discuss about the understanding meaning of the poem, idea of poem, what is the true love, what writer says about true love, identification of important symbols and literary devices, appreciation of the poem, message about everlasting love, what love feels by the writer in the poem. Now let's read the poem, discover the Shakespeare definitions of love through the poem and this sonnet. Let's begin. Sonnet number 116 मतलब sonnet number 116. Let me note to the marriages of true minds. What he says, let's see the sonnet. Let me note the marriage of true minds. Let me note marriage of the true minds. Let me note marriage of true minds. Admits impediments. Love is not love, which alters when it alterations finds, or bends with remover to remove. Okay, or bends remover to remove. Oh no, it is ever fixed mark that looks tempest and never shaken. It is the star to every wandering bark, whose worth unknown, although his height be taken. Love is no time's fool, though the rosy compasses, not with brief hours and weeks, even a days of doom. If this be error, and upon me proved, I never writ, nor man ever loved. Let's discuss line by line. Let me note marriage of true minds. Let me note, मुझे मत रोको, टू द मैरिज मतलब लोगों को मिलाने से या फिर लोगों को एक साथ लाने के लिए ऑफ ट्रू माइंड्स, जो सच्चे प्यार करने वाले लोग हैं उन लोगों को मिलाने से मेरे को मत रोको, माय डियर बिलवड. एडमिट इम्पेडिमेंट्स, एडमिट मतलब स्वीकार करना, इम्पेडिमेंट्स मतलब बाधाओं को. लव इज़ नॉट लव मतलब एडमिट स्वीकार करना बाधाओं को, और प्यार नहीं होता. सच्चे प्रेम किसी प्रकार की बाधाओं और रुकावटों से नहीं रुकता. अगर ये सब चीज़ें, अगर प्रेम है जो टाइम के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार बदल जाए तो वो प्यार नहीं होता. मेरी प्रेमिका, मुझे ट्रू माइंड्स जो बिलवड हैं उनको मिलाने दो. और अगर प्यार बदल जाए, अगर प्यार परिस्थितियों को अगर नहीं अडप्ट कर पाए
या एडमिट नहीं कर पाए तो वह प्यार प्यार नहीं होता। विच जो अल्टर्स, विच जो अल्टर्स जो बदल जाता है, अल्टर्स मीन्स बदल जाता है, वैन इट अल्टरेशन परिवर्तन, अल्टरेशन मतलब परिवर्तन फाइंड, वो प्यार प्यार नहीं होता जो अल्टर्स बदल जाता है, वैन इट अल्टरेशन फाइंड जब परिवर्तन आते हैं और परिवर्तनों के साथ जब प्यार बदल जाता है तो वो प्यार प्यार नहीं रहता। और बैंड्स और झुक जाता है, क्या होता है, और बैंड्स और झुक जाता है, रिमूवर्स अलग करने वाले, रिमूवर्स मतलब प्यार के अंदर कई व्यक्ति हो, विद द रिमूवर्स जो व्यक्ति हमें अलग करना चाहते हैं उन व्यक्तियों के इफेक्ट में आकर अगर प्यार अलग हो जाता है, अलग करने वाले व्यक्ति रिमूव हट जाता है। और अगर हमारा प्यार जो अलग करने वाली व्यक्ति हैं और जो हमको समाप्त करने वाली व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के इफेक्ट में अगर हमारा प्यार समाप्त हो जाता है तो वह प्यार प्यार नहीं रहता। क्या कहता है, अगर प्यार परिवर्तनों के कारण बदल जाता है तो प्यार प्यार नहीं रहता, प्यार को कभी कोई भी मिटा नहीं सकता। जो प्रेम किसी को अलग करने से समाप्त हो जाए वो प्रेम प्रेम नहीं होता, प्रेम कभी किसी का अलग करने से अलग नहीं हो सकता। ओ नो अरे नहीं, ओ नो अरे नहीं, इट्स यानी है इजमानी है, एन एवर फिक्स्ड एक बिल्कुल स्तंभ की तरह है, एक पत्थर की लकीर की तरह है, एक स्टोन मार्क्ड है, लव इज ए स्टोन मार्क्ड दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट। सच्चा प्यार क्या होता है, एक स्तंभ की तरह होता है, एक लाइट हाउस की तरह होता है, एक जो नॉर्थ स्टार है उसकी तरह होता है। क्या होता है, सच्चा प्यार बिल्कुल फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होता, एक स्थायी स्तंभ की तरह होता है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड नेवर सेकंड, टेम्पेस्ट मतलब तूफानों से, सेकंड हिल जाता है। क्या, सच्चा प्यार जीवन में कई तूफान कई परिस्थितियों को सहता है, मनुष्य कई परिस्थितियों को, और सच्चा प्यार भी कई परिस्थितियों को सहता है, और उन परिस्थितियों के बाद भी अगर प्यार डगमगाता नहीं है, टेम्पेस्ट मतलब तूफानों से, नेवर शेकन उनसे हिलता नहीं है, कई सिचुएशंस देखता है और कई परिस्थिति देखता है, अगर उसके बाद भी प्यार डगमगाता नहीं और हिलता नहीं तो वही सच्चा प्यार होता है। और जो प्यार इन परिस्थितियों से घबरा कर टूट जाता है वो प्यार प्यार नहीं होता, जैसा कि वर्तमान परिस्थितियों में हम देखते हैं। इट इज़ द स्टार, इट यानी है इजमानी है, द स्टार वो एक तारा है, टू एवरी वंडरिंग बार्क वो एक तारा है, तारा मतलब जस्ट नॉर्थ स्टार जो ध्रुव तारा होता है उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। वो जो तारा है वंडरिंग स्टप बार्क, वंडरिंग मतलब भटकता हुआ, स्टार मतलब तारा, वंडरिंग बार्क मतलब बार्क होता है जहाज, शिप। इट इज़ ए वो प्यार एक इस तरीके का तारा है या इस तरीके का स्तंभ है जो समुद्र में अगर कोई शिप खो जाता है तो उस शिप को क्या करता है, रास्ता दिखाने का काम करता है। वो तारा वो स्टार उस तरीके का काम करता है। क्या, प्रेम क्या होता है, सच्चे और भटके हुए जहाज का जो रास्ता है, जो नॉर्थ स्टार है वो क्या करता है, जो भटके हुए जहाज हैं उनको रास्ता दिखाने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार प्रेम भी क्या करता है, एक तरीके से मनुष्य को क्या करता है, एक सच्चा रास्ता दिखाने का क्या करता है, कार्य करता है। हुज वर्थ मतलब वर्थ मीन्स मूल्य, अननोन अज्ञात है, ऑल दो यद्यपि हिज हाइट भी टेकन उसकी हाइट को मेज़र किया जा सकता है। जो तारा है और जो लाइट हाउस है उसकी हाइट को क्या किया जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है, लेकिन उसका जो मूल्य है उसको मेज़र नहीं किया जा सकता क्योंकि वो किसी को रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। वैसे ही किसी भी तारे या वो जो लाइट स्टार है, लाइट स्तंभ है, उसको मापा जा सकता है लेकिन उसके वास्तविक मूल्य को नहीं जाना। ठीक उसी तरीके से प्यार की भी असीम सीमा है, प्यार को क्या किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लव इज़ नॉट टाइम्स फूल, प्यार क्या है, एक समय का खिलौना नहीं है। टाइम्स फूल मतलब समय का खिलौना नहीं है। दो यद्यपि रोजी लिप्स एंड चिक्स, समय क्या है, लिप्स मीन्स गाल, लिप्स मीन्स होठ और चिक्स मीन्स गाल, रोजी मीन्स गुलाबी। प्रेम क्या है, समय का गुलाम नहीं है। लव इज़ नॉट टाइम फुल, प्रेम समय का गुलाम नहीं है। दो यद्यपि रोजी लिप्स, चाहे आपकी गाल सुंदर हो या ना हो, चाहे आप बुढ़े हो जाएं, चाहे जवान रहे, चाहे आप यौवन रहे, चाहे आपकी यौवन अवस्था बदलकर बुढ़ापे में चले जाए, उसके बाद भी प्यार चेंज नहीं होना चाहिए। वही आपका क्या होता है, असली प्रेम होता है। विद इन हिज बैंडिंग शिकल कंपासेस कम, विद इन हिज बैंडिंग सिकल कंपासेस कम। बैंडिंग सिकल मतलब मुड़ी हुई दराती, जो हम फसल काटने के काम में लेते हैं उसके काम में। कंपासेस मतलब सीमा और वी कम मतलब आना। जब हम दराती को काटते हैं, दराती से क्या करते हैं, फसल को काटते हैं तो फसल काटने का काम करती है। और जब लंबे टाइम के बाद जब वो
फसल काटते हैं तो वो उसकी क्या है, धीरे धीरे उसकी धार कम होने लगी। ठीक उसी प्रकार लंबे समय के बाद जब हमें प्यार में जब हमारी यौवन अवस्था घटने लगती है, तो ठीक उसी प्रकार हमारे प्यार जो हमारी सुंदरता है वो भी कम होती जाती है। लेकिन उस सुंदरता के कम होने के साथ साथ हमारा प्यार क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे हमारी यौवन अवस्था नष्ट ही क्यों ना हो जाए। लव अल्टर्स, लव यानी प्यार, अल्टर्स मीन्स नहीं बदलता, विद द ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। लव अल्टर्स नॉट विद द ब्रीफ आवर्स, मतलब ब्रीफ आवर्स समय के साथ और सप्ताहों में नहीं बदलता। प्यार कभी भी समय बीतने के साथ साथ प्यार नहीं बदलता, कभी भी घंटे और सप्ताहों में प्यार कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, बट बियर्स इट आउट इवन, बट लेकिन बियर्स आउट बनाए रखता है, एडेज ऑफ डूम मतलब दुनिया के अंत तक, अंत समय तक। डूम मतलब ये क्या करता है, बनाए रखता है, एडेज ऑफ डूम दुनिया के अंत तक बना रहेगा। सच्चा प्यार क्या है, दुनिया के अंत तक क्या रहता है, कायम रहता है। इफ़, अब राइटर कहता है एंड के दौरान, इफ़ दिस इज एरर, अगर ये गलत है, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और ये गलत साबित होता है, आई नेवर रिड, तो तुम ये सोच लेना मैंने कभी कुछ नहीं लिखा, और नो मैन एवर लव्ड, और ना ही किसी व्यक्ति ने कभी क्या किया, प्रेम किया। लास्ट के कपलेट में क्या कहना चाहता है, इफ़, अगर जो मैंने ऊपर बात कही है, ऊपर के जो 12 लाइनों में मैंने जो बात कही, अगर वो लाइन गलत साबित हो जाए, अगर कोई व्यक्ति मुझे इस चीज़ को लेकर गलत साबित कर दे, तो मैं ये मानूंगा कि मैंने कभी कुछ नहीं लिखा प्यार के बारे में, और जीवन में मैंने कभी कुछ नहीं लिखा, और इस मनुष्य जाति में किसी भी व्यक्ति ने कभी कोई प्रेम नहीं किया। राइटर क्या कहता है कि शेक्सपियर जो सच्चा प्यार है ना वो कभी बदलता नहीं है, उसके बारे में बात करता है, और वो कहता है कि परिस्थितियाँ बदल जाए, लेकिन क्या कहता है, परिस्थितियाँ बदल जाए लेकिन प्यार स्थिर रहना चाहिए, और प्यार तूफानों में क्या रहना चाहिए, बिल्कुल टेम्पलेट है उनमें भी क्या रहना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, समय के साथ नष्ट नहीं होना चाहिए। प्यार कभी भी क्या होना चाहिए, समय के साथ नष्ट नहीं होना चाहिए, वही क्या होता है, एक सच्चा प्यार होता है। ओके, पोएम इज डन। नेक्स्ट इसकी थीम्स देखेंगे हम, स्ट्रक्चर क्या है वो थीम्स देखेंगे, लिटरेरी डिवाइसेज और कॉन्टेक्स्ट क्या है वो देखेंगे। की थीम्स, कंसिस्टेंसी है, प्यार क्या है, कंसिस्टेंट रहता है, कभी भी किसी परिस्थिति में चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्सेज के द्वारा लोग आप पे कितना भी प्रेशर बनाएं, लेकिन प्यार कभी क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइडियलाइजेशन, ट्रू लव, फिजिकल ब्यूटी और टाइम को, जो सच्चा प्यार है ना, जो फिजिकल ब्यूटी और समय को नहीं देखता, वो हमेशा परमानेंट रहता है। परमानेंस के बारे में बताया गया, लव एवर फिक्स्ड है, प्यार एक रिलायबल और शाश्वत चीज़ और रिलायबल है, कभी कम नहीं होता। नॉट अल्ट्रेशन, और इसमें क्या गया है कि जो परिस्थितियाँ परिवर्तन होती है उसके साथ कभी प्यार चेंज नहीं होता। स्ट्रक्चर तो सोनेट सीक्वेंस है, ठीक है, 3 लाइन्स 3 क्वार्टेन्स है, एक कपलेट है। राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी। आई हैव टोल्ड अबाउट हाउ टू calculate the rhyme scheme from the poem. I told in my previous videos. Please go and check those videos. Okay. Iambic pentameter. कपलेट का शिफ्ट हो रहा है। मेटाफर होता है जैसे आप इनडायरेक्ट चीज़ों का कंपैरिजन करना, जैसे स्टार गाइड्स लाइक स्टार टू द शिप्स। क्या करता है, स्टार है ना जो शिप्स को गाइड करता है, तो इसने शिप को यूज लिया कि वैसे ही लव क्या करता है, ह्यूमन बीइंग को क्या करता है, गाइड करता है सही रास्तों पर ले जाने के लिए। तो ह्यूमन बीइंग के लव की और शिप्स की यहाँ क्या किया है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया है। पर्सोनिफिकेशन, टाइम एज ए सिकल बियरिंग फोर्स, लव एज इमेन्यू टू टाइम। टाइम को क्या किया जाता है, लव के जो मानव सोसाइटी है उसके साथ में कंपैरिजन करके दिया गया है कि भाई लोग और जो सिकल है, इधर तो लोग प्यार को नष्ट करना चाहते हैं और उधर सिकल क्या करती है, जो सिकल है दनाती है, वो फसल को क्या करती है, काटने का काम करती है। पैराडॉक्स, लव नेवर चेंज यट टेस्टेड बाय चेंज। प्यार कभी चेंज नहीं होता, लेकिन जब उसको टेस्ट किया जाता है तो कभी कभी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ऐसा राइटर ने बनाया। अल्ट्रेशन, लाइन्स लेट लव, यहाँ पर मतलब रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट और वो कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। कंसीट, एक्सटेंड कंपैरिजन किया गया लव का परमानेंस और एस्ट्रोनॉमिकल मार्कर्स के साथ में, जैसे स्टार एस्ट्रोनॉमिकल मार्क्स, ठीक है। पोएम हुई है 1609 पब्लिश शेक्सपियर के सोनेट में, पार्ट सीक्वेंस 116 से 154 तक, मतलब यंग यूथ को कंपैरिजन, फर्स्ट पब्लिश क्यू एडिशन में, डेडिकेटेड WH को। किसको डेडिकेटेड की गई है ये पोएम, WH, कोई अननोन यंग मैन है। लेजेसी है,
रीड रीडिंग्स एक्सप्लोर करता है ट्रू लव को, क्वेश्चन करता है आइडेंटिटीज़ के बारे में, ब्यूटीनेस के बारे में, रेनेसां ह्यूमनिज्म के बारे में, रोमांटिक पोइट के बारे में बात करता है, मॉडर्न रिलेवेंस के बारे में बात करता है, ठीक है, रिफ्लेक्शंस के बारे में, फेयर यूथ और जो इसकी की कोटेशन है उनके बारे में बात करता है, ठीक है। लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड, ट्रू लव डजेंट चेंज की कोटेशन मतलब एग्जाम के परस्पेक्टिव से लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे कैन आस्क व्हाट डज इट मीन द लाइन इन द पोएम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द लाइन इन द पोएम, 4 ऑप्शन दे देगा और उनमें से पूछ लेगा। ट्रू लव डजेंट चेंज विद सर्कमस्टांसेस, इट इज़ एवर वंडरिंग मार मतलब लव गाइड्स लाइक नॉर्थ स्टार, लव इज़ नॉट टाइम्स फुल मतलब लव की लेजेसी के बारे में बात किया जाए तो, और टेम्पोरल डिके के बारे में, ताकि प्यार क्या होता है कभी नहीं क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, ठीक है। ओके, इफ़ देर इज एरर, राइटर कहता है कि व्हाट मेक्स परफेक्ट एक्सप्रेशन लव सर्टेनिटी, तो राइटर कहता है क्या चीज़ है जो प्यार को क्या करती है, बिल्कुल सच्चा प्यार बनाती है। जस्ट ए मिनट, आई विल ओपन द पेज। ओके, लेट्स सी थीम क्या है इस पोएम की। थीम है ट्रू लव नेवर चेंजेज, रिमेन कंस्टेंट आफ्टर डेस्पाइट डिफिकल्टीज, ठीक है। सिंबल्स का यूज़ किया गया इसने, सिंबल्स कौन के क्या यूज़ किया था, एवर फिक्स्ड, एवर फिक्स्ड किसको, नॉर्थ स्टार को, एवर फिक्स्ड नॉर्थ स्टार, ठीक है। और नॉर्थ स्टार पोलर स्टार को कहा गया है। टाइम बेंडिंग सिकल का यूज़ किया गया है। लिटरेरी डिवाइस इनके अंदर मेटाफर हमने देख लिया। पर्सोनिफिकेशन इमेजनरी का यूज़ किया गया है, किसने, इमेजनरी क्या क्या यूज़ किया है, इमेजनरी स्टार का यूज़ किया गया है। और स्टार के बाद में जो टेम्पेस्ट्स और जो वंडरिंग सिप का यूज किया गया है। एंड और किसका यूज किया गया है, और किया गया रोजी लिप्स सिकिल, मतलब जो दराती होती है उसका। और जो पोएम की टोन है वो किस तरीके की टोन है, पोएम की टोन है कॉन्फिडेंट तरीके से बात कर रहा है राइटर। और फिलोसॉफिकल थॉट्स के बारे में, लव का जो डीप इमोशन है उसके बारे में बात कर रहा है, लव का जो डीप इमोशन है उसके बारे में बात कर रहा है। और सीरियस है राइटर लव को लेकर, आइडियलिस्टिक थॉट के बारे में कर रहा है, आइडियलिस्टिक थॉट के बारे में बात कर रहा है। और जो पोएम का मैसेज है वो क्या है, लव शुड बी बेस्ड ऑन कमिटमेंट नॉट अपीरियंस, और रियल लव सर्वाइव्स हार्डशिप्स एंड लव इज स्ट्रोंगर देन टाइम, लव इज मोर स्ट्रोंगर देन टाइम, इट्स नेवर चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, लव रिमेन्स कंस्टेंट, इट नेवर चेंज ड्यू टू द कंडीशंस। ओके, बाकी सभी चीज़ें हमने देख ली। कॉन्फिडेंट और फिलोसॉफिकल थॉट्स के बारे में बात करता है राइटर। Now we will conclude the poem. How we conclude the poem? Just a minute. Okay. How it, dear students, we have discussed completely about the poem. Now we will going to ending of the poem, ending phase of the poem. Today we have learned about sonnet number 116. In Shakespeare sonnet, he described about the love always leaves consistent at every conditions and everlasting condition according to the poet. According to the poet, he discussed about the poem, how man lives genius man always loves and does not change according to the circumstances. If the love change, that is not a love, nor if love change, does it weaken with time? No, love never weaken with time if those peoples are connected heartily with each other, because of love is just as light or guided polar star through the storms, never change with the storms, or stars direct traveler, जो नॉर्थ स्टार है वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है ट्रेवलर्स को ट्रू लव, और ये क्या करता है, ट्रू लव प्रोवाइड करता है, गाइडेंस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को इटरनल। और इसमें जो डिस्कस किया गया वो इटरनल लव के बारे में, सिंबल्स और लाइट हाउस स्टार्स का यूज़ किया गया है। लिटरेरी डिवाइसेस, मेटा इमेजिनरी पर्सोनिफिकेशंस, जो शेक्सपियर का जो सोनेट है और उसकी जो राइम स्कीम है उनके बारे में किया गया, और जो
एंड में जो बात करता है वो अनचेंजिंग लव के। लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इन प्रेजेंट सिनेरियो में क्या होता है, जो लोग क्या करते हैं, जरा सी छोटे छोटे बहाने बनाकर ही प्यार को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे झगड़ों को लेकर प्यार को क्या करते हैं, ख़त्म होने पर चले जाते हैं। उनके अंदर किसी तरीके का पेशेंस नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को लोग सह नहीं कर पाते। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो इसका मतलब ये लोग ये सोचते हैं कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, हम मिल नहीं रहे। लेकिन प्यार में वो सब चीज़ें नहीं होती। और जैसे जैसे लोग बुढ़ा होता है, शरीर की जो यंगनेस है वो ख़त्म होती जाती है, तो प्यार ख़त्म होता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये सारी चीज़ें हैं ना, जो राइटर है उसने जो चीज़ें पोएम के अंदर डिस्क्राइब की है, एवर लास्टिंग, नेवर चेंज, ये सब चीज़ें जो यूज की है कि प्यार कभी चेंज नहीं होता, इन सब चीज़ों पे बाद भी क्या होता है, प्यार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लोग कभी भी इस चीज़ के वेट में नहीं रहते, टाइम के वेट में, टाइम का वेट नहीं करते और परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते। परिवर्तनों से ही लोग परिवर्तन हो जाते हैं। और जो रिमूवर हैं, उन रिमूवर से भी प्यार को रिमूव हो जाता है। एक व्यक्ति दूसरे की तरफ अफेक्ट हुआ, एक रिमूवर दूसरा रिमूवर, तो बीच में से लव को क्या कर देता है, रिमूव कर दिया जाता है। सो दैट्स वाई राइटर वांट टू से दैट love never change with any circumstances or the condition if you have true love between two beloved. If you have true love, if there is a no true love, it will change with circumstances or the remover. Anyone can easily remove to your love with circumstances or anything else, whatever condition that you are facing. ठीक है, all the things that we have read, just look seriously those things and go and check my another videos in that sequence. Now we will going to end of the discussion today's video. Thank you and welcome to see my video. Just like and subscribe and share with others, other your friends, those who are preparing for different exams like those BA, MA and UGC NET and different competitive exams. Because this poem also prescribed in many universities and many colleges syllabus. That's why it's most important poem according to syllabus, and reading it will also develop your philosophical thoughts. Okay, thank you. We will end our discussion. Okay, Jai Hind, Vande Mataram.